وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا۔ ایکو ختم کر دیں، بیس بھی سادی آواز کھول دیں بس۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مخلوقات میں سے وہ مخلوق بنایا کہ جو اشرف المخلوقات ہے۔ جناب آدم کی اولاد بنا کے پھر عزت سے نوازا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ معزز ہے وہ کہ جو عزت دینے والے کی عزت کو سمجھ لے، خود بھی لے، دوسروں کو بھی دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کا پل پل مزے کا، حسن کا، جمال کا بنا دیتے ہیں۔ وہاں ثواب بھی ہوتا ہے، سواد بھی ملتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو اپنی مرضیاں اللہ کی بات ماننے کی بجائے من مانیاں کرنا شروع کر دے۔ میرے ذمہ احباب انتظامیہ نے جو عنوان لگایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں اگر انسان کچھ نہ پڑھے، صرف اسی عنوان کو پڑھ لے، تو دونوں جہانوں کی کامیابیاں اس کا مقدر بنیں گی اور اس کے قدم چومیں گی۔ تتلے والی میرے لیے نیا نہیں ہے اور پہلا نہیں ہے، یہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ بے شمار اعتبارات سے، لیکن صرف اسی اعتبار سے کہتا ہوں، یہ غالباً میرا یہاں 5واں پروگرام ہے۔ سڑک کی خرابی کی وجہ سے بیچ میں سے تھوڑا روٹ بدلنا پڑا، اور ماشاءاللہ حکیم عزیر صاحب میرے کلاس فیلو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی والی، سلامتی والی زندگی سے نوازے۔ جہاں آج ہم بیٹھے ہیں اسے اللہ کا گھر کہتے ہیں، یہ سینٹرل گھر ہے۔ اس سے پیچھے ہمارے 10 گھر گزر چکے ہیں اور آگے بھی 10 گھر ہیں۔ 10 گھر ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے بندے کو دیتے ہیں اور اس میں اسے ضائع نہیں ہونے دیتے۔ پہلا گھر عدم کا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ جب کسی کو خبر نہیں تھی تو میرے پروردگار کو خبر تھی کہ میرا بندہ عدم میں ہے تو کہاں ہے، اور میں نے اسے بنانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ مالک الملک نے مجھے اور آپ کو ارواح کے جہان میں رکھا، روحیں بنا لی گئیں، وہاں پہ وعدے لے لیے گئے،
اور ہر روح نے ایمان کا، فرما برداری کا، اتباع کا معیاری وعدہ دیا تھا. الست بربکم، یہ وعدہ الست، اس کے اوپر شعراء نے بہت کچھ لکھا ہے، حکماء نے لکھا ہے، ائمہ محدثین نے، فقہاء نے. خیر میرا وہ ٹاپک نہیں. تیسرا گھر میرا اور آپ کا مٹی کا گھر. ہم سب مٹی سے بنے ہیں. اللہ نے کہاں رکھا، کہاں سے اٹھائی، میں اس بارے میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی مثال دیا کرتا ہوں کہ بچہ پیدا سیالکوٹ میں ہو، پڑے گوجرانوالا میں، پھر میرا رب لاہور کے اندر زخمی کروائے، علاج کے لیے ریاض پہنچائے، اور پھر تدفین کے لیے مدینۃ المنورہ البقیع میں لے جائے. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. کون جانتا تھا کہ جو سیالکوٹ میں پیدا ہو رہا ہے اسے اٹھایا مدینے سے جا رہا ہے. یہ مٹی کے جہان اور گھر اللہ واقف. پھر چوتھے نمبر پہ پانیوں کا جہان، پانچویں نمبر پہ ہوا کا جہان اور گھر، چھٹے نمبر پہ ہمارا آگ کا گھر. آپ کہیں گے کہ آگ کا گھر؟ جی، ہم سب آگ کا خمیر اپنے وجود میں لیے ہوئے ہیں. اللہ نے اس کو 98 پہ رکھا ہے. آگ اصولوں کے تحت استعمال کی جائے تو رب کی رحمت ہے. کھانے بنتے ہیں، جسم گرم رہتے ہیں، فصلیں تیار ہوتی ہیں، گرمی سے پھل پکتے ہیں. لیکن اگر یہ لیول سے زیادہ ہو جائے، ڈگری بڑھ جائے، 98 سے اوپر چلی جائے، 100 پہ پہنچے، بخار 104 ہو جائے تو یار آر پار ہو جاتے ہیں. لہذا بڑا اہم ہے. میں گھروں کی طرف لا رہا ہوں کہ گھر اجڑتے کیوں ہیں اور گھر بستے کیسے ہیں، خوشیاں غمیوں میں کیسے تبدیل ہو جاتی ہیں اور غم خوشیوں میں کیسے تبدیل ہوتے ہیں. اس حوالے سے بہت ہی اہم گزارشات ہیں. اگر ہم پچھلے 10 گھروں کے مزاج کو سمجھ لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 7ویں نمبر پہ سورۃ الطارق میں 2 گھروں کا ذکر کیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا إِن دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. باپ کی پشت ریڑھ کی ہڈی، مورا نمبر 4 اور 5. وَالتَّرَائِبِ، یہ 8واں گھر ماں کی سینے کی پسلی کی ہڈیوں میں سے پسلی نمبر 11 اور 12، وہاں پہ ہمیں رکھ کر کے پھر مالک الملک نے 9ویں گھر ماں کے رحم کے اندر ہمیں پہنچایا، پیدا کیا، بنایا، سنوارا، شکل صورت دی اور روح پھونک کر کے 10ویں جہان میں ہمیں یہاں پہنچایا. یہاں جب آنکھ کھلتی ہے تو میرے اور آپ کے بڑے بنیادی جو گھر ہیں، سمجھنے والے ہیں، جن کی وجہ سے میں بنتا ہوں، سنورتا ہوں یا اجڑتا ہوں، میں صحیح ہوتا ہوں یا بگڑتا ہوں، ان میں پہلا گھر ہے ددیال کا اور ننیال کا. ان 2 کے کمبینیشن سے میرا وجود اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لے کے آتے ہیں. اس گھر کی کامیابی اور کامرانی کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں کہ میرے ذہن میں بڑوں کا وقار ہو، اور وقار کے ساتھ والدین جو مجھ کو دیں اس تعلم کے اوپر، گین کرنے کے اوپر، لینے کے اوپر میں پورے پیار اور محبت کے ساتھ ان چیزوں کو لینے والا بنوں. اور وقار، یہ ہے معیار اس گھر کا. میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ ددیال کی وجہ سے پریشان ہیں، چچے مخالف، تائے مخالف، شریکے کا مسئلہ، کزنز کے میٹر، اسی طرح ماں کی طرف سے. تو یہ گھروں کو سمجھنے سے پہلے آپ کردار سمجھیے کہ کردار کیا ہے. سب سے پہلا کردار اس کائنات کا اللہ نے مرد کو بنایا ہے. کسی بھی گھر کا سربراہ، اہل بیت کا ہیڈ، نگران اور مسئول، دنیا میں سب سے پہلے اللہ نے اگر کسی کو مقرر کیا ہے تو وہ مرد ہے، عورت نہیں ہے. یہ دھوکہ نکال لیں مائیں بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، میرے دوست احباب بھی. ماں پہلے نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ نے مرد کو پیدا کیا ہے اور اپنے ہاتھ سے بنایا ہے.
या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। बिल इत्तिफाक ये पहला नफ्स, पहला वजूद, पहला जिस्म जिसमें जान डाली गई और रब ने अपने हाथ से बनाया, वो मर्द है और जनाब आदम अलैहिस्सलाम है। औरत का नंबर बाद में है, वह खलक़ मिनहा ज़ौजहा, उसमें से, मर्द में से, औरत मर्द में से है। और जो अपनी असल को भूल जाए, अपनी जड़ें काटने लगे, तो फिर उसका अल्लाह ही हाफिज होता है। हर औरत को, हर बहन को, हर बेटी को जब वो पैदा होती है तो उसे एक मर्द के जरिए अल्लाह 60 रिश्ते मुहैया करते हैं। 22 दधियाली, 22 ननियाली, 44 हो गए, और बाकी 16 रिश्ते अल्लाह ताला ससुराल से एक बच्ची को उसके साथ जोड़ते हैं। लेकिन ये सारी असल किसी मर्द के साथ जुड़ी होती है। बजाते खुद औरत का नंबर 96 है। अगर एक नंबर की बात हो रही है, पहले नंबर की हो रही है, मेयार की हो रही है, इब्तिदा की हो रही है, तो इस कायनात, इस दुनिया की पहली असास अल्लाह ने मर्द को बनाया है। जो इस असल को मान लेगा वो हकीकत को मानेगा, जो हकीकत को मानेगा वो हक को मानेगा, और जिसने हक को मान लिया, अल्लाह के नामों में से एक नाम अल हक है, वो इंशाअल्लाह जिंदगी में नाकाम नहीं होगा। और दूसरी बुनियाद, मर्द के साथ अल्लाह ने जो पहला रिश्ता जोड़ा है औरत का, उस रिश्ते का नाम बीवी है। वह खलक़ मिनहा ज़ौजहा, दुनिया की पहली जान जो अल्लाह ने बनाई है, जो अब्बू के साथ मिलके अब्बू जान बनती है। मैं हैरान हूं कि जिन दो जानों पे कायनात की बुनियाद खड़ी है, उन्हें जान कहा ही नहीं जाता। शौहर जान नहीं कहा गया, इस नाम के साथ मुझे नहीं कभी मिला। खामद जान नहीं बोला गया, बीवी जान नहीं कहा गया। अब्बू जान भी है, अम्मी जान भी है, भाई जान भी है, बहन जान भी है। लेकिन जो असल दो जानें थी, मिन नफ्सिम वाहिदा, जो यक जान हूं तो वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, इस जहान की बाकी जानें जिनसे बनती थी, उन्हीं दो जानों को जान नहीं बोला गया। हालांकि कुरान की जुबान में खुतबा निकाह में पढ़ी जाने वाली दूसरी आयत, उसमें यह वजाहत कर दी गई थी, इस ऊंच नीच की वजह से हमारे बने हुए घर उजड़ जाते हैं। मैं कल से 2-3 घर देख के मेरी तबीयत बड़ी आवाजार है कि करोड़ों लगा के घर बनाए गए, 4 दीवारियां, छतें, लेंटर्स डाले गए, औलादें तो मौजूद हैं, लेकिन उन घरों को बनाने वाले न मां बाप की वैल्यू है, न मां बाप हैं। एक घर में देख के आया कि अकेला बाप है, औलाद मौजूद है, जवान है, मगर मां बाप से बेवफाई करके दूर बाहर जा चुकी। एक मां को देख के आया, अकेली है, करवट नहीं बदल सकती, लेकिन सीने के बल लेट के चारपाई पे अपना एक फुल्का चूल्हे पे डाल के खाती है, पानी भरने के भी काबिल नहीं। औलादें जवान हैं, मगर वही बेवफाई। क्या करेंगे ऐसे जहान को, ऐसे मकान को, ऐसे घर को, ऐसी दौलत को, ऐसी कमाई को, ऐसी जवानी की लुटाई को क्या करेंगे? लिहाजा सबसे पहला सबक सीखें, मर्द पहली असास है, औरत को अल्लाह ने उसके बाद दूसरे नंबर पे बीवी के रूप में पेश किया है। इन दोनों का थ्रू प्रॉपर चैनल जो ताल्लुक बनता है, उस रिश्ते इज़्दिवाज को जब अल्लाह ताला मजीद बरकतें देते हैं, तो उसके बाद सबसे पहले बेटा या बेटी आता है। तीसरा नंबर औलाद का है। फिर इस रिश्ते से जो ताल्लुक बनता है, उसे मां बाप और औलाद का ताल्लुक कहते हैं। पहला ताल्लुक मियां बीवी का, दूसरा रिश्ता मां बाप का, फिर आगे बेटा था, बेटी आ गई तो भाई बहन बन गए, बेटा था और बेटा आ गया तो भाई भाई बन गए, बेटी थी और बेटी आ गई तो बहन बहन बन गए। फिर यह अखुवत का रिश्ता चलता है। यूं अगर तरतीब बनाते जाएं तो मेरे साथ इस वक्त मीरास के मैदान में 60 के लगभग रिश्ते हैं।
जो एक दूसरे के ऊपर हक रखते हैं और चीजें जो कायनात में रब ने बनाई हैं, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीया, इसमें फिर वो हिस्सेदार होते हैं। जो बुनियादी रिश्तों को नहीं समझेगा वो आगे हक भी नहीं समझेगा, हुकूक तक भी नहीं पहुंचेगा, वो फराइज को तोड़ेगा और काटेगा, वो मीरास पे कब्जे करेगा, महरूमियों का शिकार होगा, दूसरों को महरूम करेगा। तो लिहाजा बुनियादी हक रिश्ते का यह समझ लीजिए कि इस कायनात के 10वें घर के अंदर जहां हम हैं, उनमें 2 घर बड़े अहम हैं, और वो है ददियाल का और ननियाल का। ददियाल के घर का ताल्लुक मेरे अब्बू जी से, मेरे अब्बू जी के अम्मी अब्बू मेरे दादा दादी हैं। सारी दुनिया एक तरफ, बाप से भी बढ़ के अगर किसी का हक है तो वो दादाजी और दादी अम्मा का है। जिस दिन यह नुक्ता उम्मत मुसलमा भूल गई या भुला दिया गया, उस दिन आपके ततले आली के अंदर ओल्ड हाउस बन जाएगा, कुर्बो जवार में बने हुए हैं, जहां बुजुर्गों को जमा करवा दें। वो इस मोहल्ले में रहने के काबिल नहीं रहे, अब वो बातें बनाते हैं, इधर उधर की करते हैं, या उनको इंजेक्शन लगवा के मरवा दो, या उनको नशे की दवा देकर के बस वो लेटे रहें, कोई आए तो बोले नहीं। लेकिन ऐसे नहीं है, मां बाप से भी बढ़ के हक है दादाजी और दादी अम्मा का। ददियाली घर में प्यार का रिश्ता, ये बूढ़े हो गए हैं, सठिया नहीं गए। हालात ने इनके वजूद पे जहां समाइले मुस्काने मुस्कुराहटें होती थी, आज झुर्रियां डाल दी हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि ये बेगाने हो गए हैं, ये और अपने हो गए हैं। इन्होंने प्यार देना है, हमने इनको वकार देना है। और वकार में जहां से मर्जी पढ़ के आ जाओ, आखिरी डिग्रियां लेकर के आ जाओ, पोस्ट डॉक्टरेट करके आ जाओ, जामे सल्फिया की सारी जो है वो जितनी सनदें लेकर के आ जाओ, वफाक पढ़ के आ जाओ, उलूम इस्लामिया पे दस्तरस रख के आ जाओ, किताबों में दर्ज था ही नहीं सबक जो पढ़ाया जमाने ने। ये जो नानी नाना और दादा दादी ने सबक पढ़ करके तजर्बा आपसे शेयर किया है, ये 50-50, 60-60, 70-70 साल की ली हुई क्लास का निचोड़ है। जिन घरों में इनकी इज्जत है, इनका वकार है, और इनकी तालीम और तरबियत के मामले में इनसे ताल्लुम लेना है, मैंने सीखना है, इंशाअल्लाह ये कामयाब है। मेरे अब्बू के बड़े भाई मेरे ताए, उनके घर वाली ताई अम्मा, तायाजाद उनके बेटे और बेटियां, इसी तरह उनके भाई मेरे जो छोटे हैं वो मेरे चचे हैं, उनकी बहनें मेरी फूफियां, फूफियों के घर वाले मेरे फूफे हैं, ये फूफाजाद, ये चचाजाद, वो तायाजाद, ये मेरे ददियाली रिश्तों की एक जमा पूंजी जो है 22 रिश्तों की शक्ल में मेरे साथ जुड़ी हुई है। अगर मैं इनका कदरदान हूं तो मेरी भी पहचान अच्छी होगी, मेरी भी पहचान अच्छी होगी। फल की पहचान दरख्त से और दरख्त की पहचान फल से होती है, ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं। अगर आप इन लोगों से कटे हुए हैं तो आज की ये दावत कोई रूटीन का जलसा नहीं है, कोई आदतन दरस नहीं है। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी। हर बंदा अपने ददियाल को मुझसे बेहतर समझता है। दूसरी तरफ ननियाल है। जितनी इज्जत मेरे बाप की है और उनके मां बाप और रिश्तेदारों की है, क्या मेरे उस घर के अंदर ददियाली घर में मेरे ननियाली घर की इज्जत है उतनी? अगर है तो ततले आली के रहने वालों आपको मुबारक हो, अगर नहीं है नजर सानी करें। आज भी दुरुस्तगी का इम्कान बाकी है, इस्लाह का पहलू बाकी है। जितनी इज्जत मेरे बाप को पुरसुकून होने के लिए चाहिए, उतनी ही इज्जत मेरी मां को अपने रिश्तेदारों की चाहिए और मुझे भी चाहिए, क्योंकि वो मेरी असल हैं और वो मेरा ननियाल है। अगर मेरी मां ना होती, ये असल ना होती, मां उनके घर में पैदा ना होती, वो रिश्ता ना देते और ये सारा सेटअप ना बनता। जज़ाकुमुल्लाह। तो मेरे दोस्तों, कभी भी कुरान मजीद ने सूरह रूम में एक बड़ी अजीब बात की है, वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा।
रब की निशानियों में से एक निशानी यह है कि उसने तुम्हारे जोड़े बनाए हैं, तुम्हारी जानों में से बनाए हैं। यहां भी रब ने लफ्ज़ अनफुस बोला है, ये जितने हैं ये मेरी जान है, इनसे निकले हैं मेरे अब्बू जान, उनसे अम्मी जान की आगे जाने हैं, जिनमें मेरी मां की जान है वो ननियाल हैं, मेरे अम्मी के अब्बू अम्मी नाना नानी, भाई मेरे मामू, उनकी घर वालियां मेरी ममानियां, उनके बच्चे जो हैं वो मेरे मामूजाद, इसी तरह मेरी मां की बहनें मेरी खालाएं, उनके घर वाले खालू, उनके बच्चे मेरे खालाजाद। ये रिश्ते मिला के 22, ये 44 रिश्ते मेरी असल हैं। इन घरों में अगर सुकून चाहते हो, अल्लाह ने जोड़ने का सबब भी यह बनाया है, लितस्कुनु इलैहा, ऐसे ही है, समझ रहे हैं? लितस्कुनु, सुकून सकन से है, सकन चलती हुई चीज जहां साकिन हो जाए। मैं बैरून मुल्क हूं, वहां मुझे फिक्र है, मैं वहां से टिकट लेके कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, संबड़ियाल, जहां भी आऊं, मुल्तान आऊं, मैं वहां भी पुरसुकून नहीं एयरपोर्ट पे। मैं सारे मेन जिलों में पहुंच के, गुजरांवाला पहुंच के भी पुरसुकून नहीं, जब तक मैं वहां से ततले वाली नहीं आ जाता, और ततले वाली से आके अपने मोहल्ले में नहीं आ जाता, मोहल्ले में से आके मैं अपनी गली में नहीं पहुंच जाता, और गली में से आके जब तक मैं अपने घर नहीं आ जाता मुझे सुकून नहीं आता। यह मेरा आखिरी स्टॉप होता है, इसीलिए इसको सुकून कहते हैं। और सुकून लेने की 2 ही शर्तें हैं, वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, रहम के रिश्तों में मवद्दत हो, मोहब्बत बाजारी हो गई है, ये आई लव यू तलक महदूद हो गई है, ये शक्ल सूरत और खास ख्वाहिशात तक चली गई है, ये दीवाने का वार बन गई है, ये कौम को उल्लू और इल्लू बना गई है। गुलशन की बर्बादी को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? बेटी ने बाप को उल्लू बनाया, भाग गई, भाइयों को उल्लू बनाया, जाकर के कहीं निकाह कर लिया, भाई ने किसी को उल्लू बनाया, पूरी कौम एक दूसरे को उल्लू बना के, बीवी शौहर को, शौहर बीवी को। अगर ये आई लव यू है तो ये इल्लू और उल्लू गुलशन की बर्बादी के लिए काफी, ये मोहब्बत तबाही और बर्बादी है। अगर कामयाबी चाहते हो, घरों को आबाद देखना चाहते हो, तो मवद्दत में आओ। मवद्दत में थ्रू प्रॉपर चैनल निकाह होगा, जिना नहीं, सिफा नहीं, झूठ नहीं, मिलावट नहीं, धोखा नहीं, किसी को बेवकूफ बनाना नहीं, उल्लू बनाना नहीं, बल्कि एतबार होगा। मैं अपने मां बाप को ददियाल ननियाल दोनों को कहूंगा ऐलान करके, जाओ जहां आपको अच्छा लगे मेरा रिश्ता कर देना, मैं आपकी रजा पे राजी, आपकी पसंद पे राजी। है इतनी जुर्रत, है इतनी अखलाकियात? किसी भी बाप को बेटा, मां को बेटी कह देना, अम्मी अब्बू असी तुहाडे हां ते सारी जिंदगी तुसी अपनी पसंद दा खवाया ते पसंद दा पवाया, तुसी साडे लई बुरा नहीं सोचोगे, जिथे तुसी करोगे उत्थे असी राजी। ते प्यो दा दिल जिहड़ा ना जी, शेर तू सवा शेर नहीं, पता नहीं किन्ने शेर दा हो जांदा जे। चेक करके देखना, कभी मां बाप पे एतमाद करके देखना, उनके वकार का लिहाज रख के देखना। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन का माना यह है, व बिर रसूल नबीयन का भी माना यही है, व बिल इस्लाम दीनन का भी माना यही है। इन तीनों ने मवद्दत सिखाई। अल्लाह का नाम अल-वदूद है, इसीलिए कहा तज़व्वजू अल-वदूद अल-वलूद, मवद्दत करने वाला जोड़ा बनो, दोनों प्यार। और मवद्दत में क्या होगा? अल्लाह का टाइम अल्लाह को, बंदू का टाइम बंदू को। यह नहीं होगा कि रब के टाइम में बंदू को टाइम दिया जा रहा है, बंदू के टाइम में वो मुसल्ले पे खड़ी हुई है, नहीं, दोनों के अंदर एतदाल होगा। वह रहमा, ये रहम के रिश्ते हैं। मेरे दादाजी को मिला दादी का रहम, जो मेरी दादी है, उनसे पैदा हुए मेरे वालिद, ये वो मेरे बाप का रहम, मेरे चचे, मेरे ताए और मेरी फूफियां, उनका रहम एक। अगर ये रहम मैंने उनको इज्जत दे दी, और उधर मेरी मां के जितने असल रहम है उनको इज्जत मिल गई, तो चारों तरफ रहमत रहमत, प्यार और मोहब्बत होगी। मगर हमने पहली मार यहीं खाई है। मैं किसी की बेटी लेकर के, उनका रहम लेके जब अपने घर में लाता हूं, तो उसे यह सबक देता हूं कि मेरी अब्बू की भी इज्जत, मेरी मां की भी इज्जत, मेरे बहनों की इज्जत, मेरे भाइयों की इज्जत, मेरे सारे रिश्तेदारों की इज्जत करना मेरी असल है।
लेकिन तेरा मां प्यो इत्थे ना बड़े। याद रखिए, दोहरे मेयार कभी कामयाबियां नहीं देते। अगर आप चाहते हैं कि आपके मां बाप की इज्जत हो, तो जो आपकी घरवाली है उसके मां बाप की इज्जत करना सीखो, ननियाल की इज्जत होगी। बहनों की इज्जत करो, ननियाल की इज्जत होगी। उसके भाइयों की इज्जत करो, ननियाल की इज्जत होगी। रिश्ता लेने से पहले तो भाई भाई बड़े अच्छे, लेकिन बाद में ये सारे हरामी मेरे साले हैं ये बोलते हो। फिर वो भी जवाई को कुत्ता बोलते हैं। यूं करते करते हालात बिगड़ते बिगड़ते ये उनको बुरा बोलते हैं, वो इनको बुरा बोलते हैं। जुबानें बेबाक होती हैं, अल्फाज नंगे होते हैं। फिर याद रहे कि इतनी तड़ाक तड़ाक की चोटें सख्त नहीं जितनी तलाक तलाक की चोटें सख्त हैं। पहाड़ों से भी गिर के कभी आती नहीं खराश, और नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें। अक्सर लफ्ज आतिश फिशा नहीं होते, लहजे आग लगा देते हैं। फिर जब लफ्ज बदलते हैं, लहजे बदलते हैं, ख्यालात बदलते हैं, नजरियात बदलते हैं, तो फिर बच्चे जो हैं वो जिंदा मां बाप के यतीम होते हैं। मां बाप मर जाएं तो यतीमी गवारा है, कब्र देख के सब्र आ जाती है। लेकिन अगर बाप भी जिंदा हो, मां भी जिंदा हो, जिंदगी में दोनों को मिल नहीं सकें, अदालतों में जाके कटहरों में एक दूसरे को खींचातानी करें और वो चीखते रहें और मरते रहें, तो फिर समझ लीजिए कि जिस्म भी गए, जान भी गई, रूह भी गई, अमन भी गया, सुकून भी गया। फिर आपका घर टूट चुका है, बचा कुछ नहीं। प्रॉब्लम यह है कि घर कच्चे हों तो हम पक्के कर लेते हैं कि बारिश की वजह से, रिमझिम की वजह से, किसी जगह से लीकेज ना हो। अगर दीवारें खराब हों हम नई टाइलें लगा लेते हैं, पेपर चढ़ा लेते हैं। लेकिन रिश्ते कच्चे हों तो मजीद कच्चा करने में पूरी कौम लगी हुई है। इन गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। नहीं, जैसे दरारें भरी जाती हैं, रिश्तों के खलापुर किए जाएंगे। जिस दिन ये रिश्ते की दीवार गिर गई, याद रखना बीच में से तीसरा गुजर गया तो बचा कुछ भी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट जो गुजारिश है, अगला घर है आपकी असल का घर। मेरे नाल मौजूद है या कैमरे की तरफ तवज्जो है? अगर मेरे साथ हैं तो असल का घर तो मैं बयान कर चुका हूं, आपको कहना चाहिए था कि नहीं ये तो हो चुका है। अगला घर है आपकी फसल का घर। फसल में एतबार चाहिए। एतबार समझते हैं? जिस दिन एतबार का रिश्ता मियां बीवी में उठ गया, एतबार, सारी दुनिया की पंचायतें बुला लेना, जजेस बुला लेना, अदालतें बुला लेना, उस दिन फिर यह घर बाकी नहीं रहेगा। जब तक एतबार बाकी है, वकार भी बाकी है, प्यार भी बाकी है। और एतबार के साथ एक दूसरे का शुक्र गुजार, ये दो बुनियादी उसूल याद रखना। फसल बीवी को कहते हैं। कुरान मजीद की इस्तिलाह बोल रहा हूं। असल मां बाप हैं ददियाल ननियाल, फसल आपकी बीवी है। ये बीवी, ये पहली, ये जगह, ये हर्ष आपको किसी इज्जतदार मुअज्जज बंदे ने, पूरी दुनिया के 8 अरब लोगों में कोई ऐसा नहीं था जितना ये अजीम बाप है या अजीम भाई हैं जिन्होंने अपनी इज्जत यूं हथेली पे रख के आपके साथ गाड़ी में हजारों लोगों की मौजूदगी में बिठा करके इज्जत महसूस करी है। इनको कभी बेइज्जत ना करना, रुसवा ना करना, वगरना तेरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि आप असल को काट रहे हैं। जिस दिन आपने अपने बच्चों में नफरत दिलाई ननियाल की, प्यार डालना चाहा ददियाल का, मां ने जब भी बोला नफरत दिलाई ददियाल से, होता है कि नहीं पता नहीं, तो अड्याल शायद बचे हो, वो साढ़े हाल ते हालात कुछ और ना। दरवाजा खटखटाया, मां ने भेजा, पुत चेक कर कौन है। मामा चाचू आए हैं। इन्हें गाह ही पाया, रोज ही टुरे ने, इन्हों घर बह के सुकून ना किते खाण देंदे ना खांदे। ये मेरे भाई के बारे में जुमले हैं। मेरी बहन अभी आई नहीं, उसने 15 दिन बाद आना है। घर में तैयारियां शुरू हो गई हैं, अपना अपना सामान सांभ लो, ताले तूले ला लो, फुफो आने लगी जी। अगर मेरे असल के रहम के रिश्तों की कदर ये है और पहचान ये हो रही है, और जितनी गीबत, जितनी चुगलियां, जितनी लूतियां लगनी है वो मेरे घर के बारे में, तो
ज़ाहिर है जिद में आकर के मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगा, मेरा रिएक्शन होगा। मैं उस औरत के माँ बाप के बारे में, बहनों के बारे में, भाइयों के बारे में, और दूसरी तरफ रवैया ये हो कि अभी अमेरिका से जो है वो मामू चला हो जो मेरी बीवी का भाई है, इतने अलर्ट होया हुआ गड्डी फड़ो लाहौर पहुंचना है, उन्हें एयरपोर्ट पे उठना, माशाल्लाह बच्चे तैयारियां कर रहे हो, खाला आ रही है तो बड़ा जबरदस्त, क्या बात है, ये होगा वो होगा, प्लान हो रहा, और फुफ्फो आ रही हो तो दिल तंग, चचा आ रहा है तो दिल तंग मामू, और खालाएं आ रही हैं, तो आप अपनी फसल का एतबार गंवा रहे हैं, ना शुक्र हैं दोनों। इन्नल हम्दलिल्लाह, घर उन्हीं के कामयाब होने हैं जैसे भी रिश्तेदार मिल गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरे सर के ताज तुम्हारे अब्बू नहीं है, मेरे भी अब्बू है। मेरे अब्बू अब मुझे नहीं रख सके, जो अपने हाथों मुझे लेकर के आए हैं अब्बू तो अब ये है ना। अपनी मां तो मैं छोड़ आई, जितनी देर संभाल पाई, मेरी मां जी हैं। आप यकीन करें शौहर का सीना इतना चौड़ा भी होगा, सुकून भी मिलेगा। और मैं अल्लाह के घर में बैठ के बड़ा मिट के ये जुमला बोल रहा हूं कि स्टेज की दुनिया पे, दिन को तालीम और तरबियत की दुनिया पे अगर हवाओं के घोड़े पे सवार रहा हूं तो इसमें सबसे बड़ा किरदार मेरी अहलिया का था कि जिसने मेरे मां बाप को इतनी इज्जत, इतना एहतराम, इतनी खिदमत, इतना प्यार, इतना वकार दिया कि मां कहती थी बेटा औलाद में से उतना कोई सुकून नहीं दे सका जितनी तेरी अहलिया ने प्यार दिया। तो मैं सुकून में था, मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मैं रातों को बाहर, मैं दिनों को ड्यूटीज पे, और मुतबादल पे उसके बदले में रब जानता है इस दिल के अंदर मेरे ससुराल की मेरे यहां कदर कितनी है, यह सिर्फ अल्लाह जानता है, रिया के लिए नहीं कह रहा। और वो पुरसुकून है कि उसे कभी अपने मां बाप के बारे में कभी कुछ मनफी नहीं सुनना पड़ा। हजरात कीजिए थोड़ी तवज्जो, घर जन्नत नुमा बन जाएंगे, नहीं तो जहन्नम कदे बन जाएंगे। आखिरी दो मंजिलें या जन्नत है या जहन्नम है, यह सारी उसकी प्रैक्टिस और रिहर्सल है। जो यहां जहन्नम कदा बना के बैठा है वो आगे जन्नत कैसे लेगा। किसी ने कहा था जो घर से उठ करके चंद मीटर का फासला तय करके लिहाफ उतार करके अल्लाह के घर में नहीं आ सकता, वो यहां से जन्नत चला जाएगा। जो अपने घर को, ददियाल ननियाल को, ससुराल को, इनको इज्जत देकर के वकार नहीं दे सका, आगे क्या होगा। आगे चलिए, फसल को क्या चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरा मालिक बहुत अच्छा है, मेरे मियां जैसा कायनात में मियां कोई नहीं। हम जुमला क्या सुनते हैं, थोड़े अल शायद बचत होवे, तुसी भाई डाढ़े लोग हो, तगड़े लोग हो, शायद सहमे होण घर वाले, कहंदे हुण भी साडे तू मियां किसी होर दा चंगा नहीं, साडे अल तो कहंदे मेरा पता नहीं मेरे मुकद्दरां लेखां च कित्थों पल्ले पै गया सी, कित्थों मेरे प्यो ने मेरे लिए चुन लिया सी। बंदा तो मेरी भैन दा है ना, बंदा तो मेरी कजन दा, फलां बाजी दा है, आ मेरी हमसाई वर्गा होना चाहिए सी जिद्दां दा इन्हां दा बंदा है। अपने को क्या है, मेरा वस नहीं चलता, मैंने तो 32 दंदां थले रख के पी दवां। नहीं, रजी तो बिल्लाही रब्बा, अल्लाह 8 अरब की आबादी में एक मेरी चाहत और ख्वाहिश थी, एक तेरी पसंद थी। अल्लाह यकीनन मुझे मेरी पसंद अच्छी लग रही थी, लेकिन जो तूने मेरे लिए पसंद किया, मेरे मां बाप ने पसंद किया, मैं उस पसंद पे राजी हूं। अल्लाह तेरा शुक्र है कि पूरी कायनात में मेरे शौहर जैसा कोई और शौहर नहीं। मैं जिंदगी च पहली दफा सुनिया जी। पता क्यों, नारा तकबीर तो सुनीदा सी, लेकिन अल्लाह नूं वड्डा करन लई अल्लाह ने सानूं वड्डा बनाया, लेकिन ये दर्दिया नारा है कोई। अल्लाह अकबर, अल्लाह करे। और अगली बात, मर्दों में भी यही ना शुक्री है, जिथे बहन गए ना, मैं एडा सोहना एडा चंगा, मैनू पता नहीं आ झूठ ते लीक कितों मत्थे लग गई है। बुढ़ी तो मेरे साले दी है, बुढ़ी तो मेरे भरावां दी है, बेगम ते ओदी है। और जाने दे यार, जो तेरी नहीं वो खूबसूरत कहां है। मेरे को एक टुटी जी 86 होंदी सी, तो सारे उलमा कहंदे सी प्रोफैसर तेरे स्टेटस दी नहीं, फलाना मॉडल सोहना। मैं कहा जेड़ा मेरे को नहीं वो सोहना कादा, सोहना वही है जो मेरे को है।
खूबसूरत वही है जो मेरे पास है। दुनिया में कोई मेरी बीवी से बढ़ के खूबसूरत होगी किसी के लिए, मैं क्या करूं? जो मेरे रब ने, मेरी मां ने, मेरे बाप ने, मेरे रिश्तेदारों ने, अजीजों अकारब ने, जो मेरे मुकद्दर ने, जो मेरी किस्मत ने और जो मेरे नसीबे ने मेरे लिए चुना है कायनात में, उससे बढ़ के कोई और हसीन नहीं हो सकती। ये अखां फेर ही डकियां जांदियां ने, नहीं तो इत्थे भी उत्थे भी। ये दिल फेर ही संभलदा ते सुकून पड़दा, वगरना इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, पता नहीं कोई कितने 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 डिगे। कभी अरश पर, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर, कभी मेरे दर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आश की तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। यह मसला फिर तौहीद का, रब की उलूहियत में भी नहीं रहता और अपनी फसल की हिफाजत में भी नहीं रहता। जब फसल को बाढ़ खाने लग जाए तो पीछे क्या बचेगा? और अगर फसल बाढ़ की मुखालिफ हो जाए तो कुछ नहीं रहता। लिहाजा शुक्रगुजार बनिए, एतबार ना टूटने पाए, आपकी फसल कायम रहेगी। तीसरा घर नस्ल का घर है। वो कौन सा होता है? मेरे बच्चों का घर। बच्चों के घर को तालीम, तरबियत और प्यार चाहिए। आप तालीम कैसी दे रहे हैं, तरबियत कैसी कर रहे हैं और प्यार कैसा दे रहे हैं, इसके ऊपर दारो मदार है घर आबाद होने का। आप अपने घर में सांप पाल रहे हैं, सपोलिए पाल रहे हैं, आप अपने घर के अंदर न्योले पाल रहे हैं, आप अपने घर के अंदर गंदी औलाद ना मजा ना सवाद पाल रहे हैं, आप अपने घर में क्या कर रहे हैं? जब आप अपने बच्चों को यह डायलॉग सुनवाएंगे कि गंदी औलाद मजा ना सवाद, औलाद तो हंसेगी, जवाब तैयार करेगी। और जो ये डायलॉग औलाद को दिलवा रहा है वो मां बाप को भी जवाब दिलवाएगा। तुसी अपने मजे लैण लई लगे हो, सानू तुसी थोड़ा ख्याल नाल सोच के जम्मिया, ताने मिलेंगे। और ये जुमले स्टेज के हैं, गंदगी के हैं, गिलाजत के हैं, नस्ल की बर्बादी और तबाही के हैं। नस्ल की खैर खाही के जुमले क्या हैं? खैरु मताइद दुनिया अलमरअतु सालिहा। कायनात की सबसे महंगी अगर कोई चीज गिफ्ट में हो सकती है, बच्चों के लिए मां हो सकती है, शौहर के लिए नेक बीवी हो सकती है। कई ना अपने उन्हों का लबो लहजा उन्होंने की कहीदा है, तकिया कलाम। जैसे हमारे एक उस्ताद जी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और आफियत वाली जिंदगी दे, वो कहते हैं सुभान अल्लाह शरीफ आदमी। सुभान अल्लाह जामे सल्फिया के जो शेखुल हदीस है, सुभान अल्लाह शरीफ आदमी। कितना प्यारा जुमला है। कुछ लोगों का तकिया कलाम होता है, वे मेरे महंगे, वे मेरे। कायनात में बीवी के लिए शौहर जितना महंगा कुछ और नहीं। अगर वो महंगा कहना चाहती है तो कह सकती है, वो जान कहने का हक रखती है। मां अपने बच्चे को महंगा कह लेती है। काश के औलाद की भी तरबियत होती कि मेरे बाप से महंगा कायनात में कुछ नहीं, भले वो गधा रेड़ी क्यों नहीं चलाता। लोगों के अमीर बाप शहजादे भी मिलके वो काम नहीं करेंगे जो तेरा गधा रेड़ी चलाने वाला मजदूर बाप कर सकता है। लिहाजा उसको इज्जत दे, एहतराम दे, वकार दे, प्यार दे। तालीम आप करें, बच्चे लें, तरबियत आप करें, वो लें, और प्यार आप दें। जितने प्यार से पालेंगे उतने ही प्यार और एहतराम से इंशाल्लाह आने वाले दिलों में रद्द फेल मिलेगा। जब बचपन में दूरियां हैं, नफरतें हैं, शिद्दतें हैं, हिद्दत हैं, मार है, कुटाई है, ज्यादतियां हैं, लाइल्मी है, जहालत है, तो फिर बच्चों ने भी तो उसी तरह बदला देना है। और यह प्यार का पता चलेगा कि आप अपने मां बाप से कितना प्यार करते हैं। या मिसाल देना चाहता हूं, बाप एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है, नक्शा नवीस है, मकान बनाता है, इंजीनियर भी है। उसने अपने बच्चों के लिए बहुत कमाल का घर बनाया है। सुनना जरा, समझने के लिए मिसाल दे रहा हूं। कमाल का घर बनाया है, देख के दिल करता है अशश। इसने अपने बच्चे को दाखिल करवाया और कहा कि बेटा तूने मेरी ही फील्ड में आना है। माशाल्लाह इसने पहली 3 क्लासों में जो टीचर्स हायर करी वो बड़े कमाल के इस शोबे से ताल्लुक रखते थे। एक दिन डाइनिंग के ऊपर बैठा, नक्शा बना के बैठा है, कहता है बाबा देखो मैंने कितना कमाल का अपने घर का नक्शा बनाया।
बाप ने तारीफ करी, बल्ले बल्ले यार, ये तो मैं अभी तक नहीं बना सका जितना खूबसूरत आपने बना दिया है। ये कहां कहां से आपने लॉन और कैसे कैसे जो है स्विमिंग पूल और पता नहीं क्या क्या डाला है, और कितने खूबसूरत तूने जो है वो मास्टर रूम, ड्राइंग रूम और जो है वो बेडरूम डाले हैं। बताता गया बाबा ये मेरा है, ये मेरा है, ये इसका है, वो उसका है, वो मेहमानों का है, ये इसका है। बाबा ने पूछा वो कॉर्नर में जो छोटा सा आपने ये बनाया हुआ है एक स्टोर सा, वो किसका है? कहने लगा बाबा ये आपका है, ये आपका है। बाप तड़प गया, तेरे लिए मैंने इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई, आलीशान बनाई, इतनी मंजिलें बनाई, तू मेरा महंगा महंगा है, तू मेरा अकेला अकेला है, मैंने तुझे इतना कुछ दिया हुआ है और तूने अपने मुस्तकबिल की प्लान में, अपने नक्शे में जो है वो मेरे लिए एक स्टोर रखा हुआ है। कहने लगा बाबा सारा बाकी नक्शा मैंने टीचर से सीखा है, और ये जो स्टोर मैंने बनाया है ना, ये मैंने आपसे सीखा है। लगा क्या मतलब? कहा आपने अपने घर में दादा अब्बू को कहां रखा हुआ है? आपने अपने घर में दादा अब्बू को कहां रखा हुआ है? इतने बड़े बड़े महंगे बेडरूम और उनके अंदर जो है वो लगे बिस्तर वो खाली पड़े हैं। बाबा आपके बाबा तो वो गेट के पास एक छोटे से स्टोर में नहीं रहते? कहा जी बेटा। कहा फिर ये मैंने आपसे सीखा। आज जिस लबो लहजे से मां बाप को बुला रहे हो वो आप अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हो, वही तालीम दे रहे हो। अगर सख्ती से नफरत से बोल रहे हो, अपने बच्चों के लिए वो प्यार में कमी ला रहे हो। सिर्फ पुचकार लेना प्यार नहीं, माल दे देना प्यार नहीं, अच्छा लिबास दे देना प्यार नहीं। लिबास हिस्सा है प्यार का, लेकिन प्यार मेयारी नहीं होगा, एतबार मेयारी नहीं होगा, वकार मेयारी नहीं होगा, तो ये घर धड़ाम से गिरेंगे। और ये तीनों चीजें, बड़ों का वकार, बीवी और शौहर का एतबार, बच्चों का प्यार, मेयारी कहां से मिलेगा? इस घर से जिसे अल्लाह का घर कहते हैं। अब तवज्जो आनी है। अगर आपके मोहल्ले में, आपकी गली के अंदर अल्लाह का घर है और आप उससे जुड़े हुए नहीं, कुआं है आप पानी नहीं भरते, आपकी जेब में मोबाइल है, उसमें लाइट है, टार्च है, लाइट गई है मगर आप उसको जलाते नहीं, कसूर टार्च का नहीं है, कसूर आपकी उस सोच का है कि आप वहां तक गए नहीं। कुआं था, पानी लेने नहीं गए, दुकान थी खुली हुई थी, जेब में पैसे थे, घर में मेहमान आया था, आप सामान खरीदने नहीं गए। न कसूर दुकान का है, न सामान का है, न पैसे का है, न मेहमान का है, न घर वालों का है। यह सिर्फ आपकी लापरवाही का वो कसूर है कि जो होते हुए भी चीज ले नहीं सका। कितने मदरसे हैं, कितने अल्लाह के घर हैं, कितने उलमा हैं जिनकी जिंदगियां गुजरी हैं, कितने कुर्रा हैं, कितने मुहद्दिसीन हैं और कितने मुफस्सिरीन हैं। आपको उनके नाम तक नहीं आते, लेकिन बच्चों को यह इल्म है कि कौन किस बाल पे आउट हुआ था और किसने हैट्रिक में पहले 3 लोगों को आउट करा था और किसने कितनी सेंचुरियां बनाई हैं, किसने कितनी 50s बना रखी हैं। आज किसका किसके साथ मैच है, लेकिन आपके अपने मोहल्ले के अंदर पता ना हो कि आज दरस किसका है, तो फिर माजरत के साथ ये आपकी कमजोरी है कि आपका अल्लाह के घर के साथ ताल्लुक मेयारी नहीं है। यहां गुजारिश करना चाहूंगा जी। इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया जो मैं देख रहा हूं वो है उलमा से अवाम को दूर किया जा रहा है, जो असल मोहसिन और मुरब्बी हैं, और जो गैर मुस्लिमों के मुबल्लिग मुरब्बी उनको करीब किया जा रहा है। हीरो किसी भी फिल्म का वो उनका मुरब्बी है, विलन उनका मुरब्बी है। ये सारे सिलसिले तो हमें पता हो। मेरी बेटी किसी हीरोइन की तरह बनना चाहे, हेयर स्टाइल वैसा रखना चाहे, मेरे बेटे की जिंदगी, कपड़ा, लिबास, हिजाब, डायलॉग्स वो किसी हीरो की तरह बनना चाहे, कोई किसी विलन की तरह, क्रिकेटर की तरह, स्पोर्ट्समैन की तरह, लेकिन अपने ही खित्ते के आलम जिसकी जिंदगी में प्यार, एतबार, सादगी, कह रहे थे ना मौलाना एजाज रहमानी साहब का, पता है कौम को क्या देके गए हैं? एक मरकज, एक सेंटर देके गए हैं। आपके इन पिछले 10 घर, उन 10 घरों में ददियाल का घर, ननियाल का घर, ससुराल का घर,
اصل کا گھر آپ کی جانے والی یا آنے والی نسل کا گھر، ان سب کو اگر آپ اس گھر سے جوڑ دیتے ہیں تو آنے والے آپ کے 10 گھر معزز ہو جائیں گے، جنت ہو جائیں گے۔ اگر نہ ہوئے تو پھر جہنم تو ہے ہی۔ آئیے اس گھر کے ساتھ جڑ کے کتاب و سنت سے پہلے میں ایک عالم کی قدر بتا دوں، وہ کیا ہوتی ہے۔ اچھا، عالم کسی بھی مسلک کا ہونا، میاں جی کی قدر کیا کریں، عزت کیا کریں۔ اختلاف اپنی جگہ ہے، میں نے اپنے بڑوں سے اختلاف بھی سیکھا ہے، دلائل بھی سیکھے ہیں، استنباط بھی سیکھا ہے، لیکن پیش کرنے کا ادب بھی سیکھا ہے۔ اسی لیے شاید سٹیج پہ رہتے ہوئے آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی مسلک والے کا نام بے ادبی سے لینا تو بڑی دور، کبھی اس کو ٹیڑھا کر کے بھی لینے کی کوشش کی۔ کیوں؟ میرا کام ہے دلیل دینا، لست علیہم بمسیطر، میں مسلط کر کے نہیں بھیجا گیا، منوانا میرا کام نہیں۔ وما علیک الا البلاغ المبین، دلیل واضح کر کے دیں، بات کلیئر کٹ کریں، دو ٹوک کریں، موقف جو ہے وہ ٹھوس رکھیں، لیکن لب و لہجے میں نرمی اور پیار اور وقار اور احترام اور ادب ضروری ہے، مگر ادب کے نام پہ شرک ہو جائے یہ بھی نہیں۔ ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے، انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے، اتنا سخت بھی نہ ہو، اتنا کڑوا بھی نہ ہو کہ لوگ تھوک دیں، اور اتنا میٹھا بھی نہ بن کہ لوگ ہپ ہپ کر جائیں۔ اعتدال میں رہ کر کے علماء کے ساتھ جڑیے۔ ایک عالم کی پتہ کتنی شان ہے، صحرا میں سے گزر جائے نا، صحرا میں سے، اور صرف اپنے پاؤں کے نشان چھوڑ جائے، میرا رب اتنی خیر اور برکت پیدا کر دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں اس صدی میں، اس صدی کے یہ تیسرا عشرہ لگ چکا ہے، چولستان میں میرے بھائی دیکھ کے آئے ہیں، چولستان کا ابتدائی ایریا، روہی میں، تھر میں، تھل میں، جہاں بندے کا پتا پانی ہوتا ہے، ہونٹ خشک ہوتے ہیں، ان صحراؤں کے اندر، تھر کے چاروں ضلعوں کے اندر، جہاں بھی میری گاڑی کے ٹائر لگے، وہاں پہلے مجھے سید بدی الدین راشدی کے پاؤں کے نشان ملے کہ وہ مرد مجاہد یہاں سے پیدل گزر گیا، وہ اونٹوں پہ گزر گیا ہے۔ یہاں سے مولانا عبد القادر روپڑی مناظرے کے لیے 13 کلومیٹر پیدل چل کے گزر گئے ہیں۔ جس جگہ سے عالم گزر جائے نا، اللہ اس خشک جگہ میں بھی رنگ لگا دیتے ہیں، صبغت اللہ، اللہ کی توحید کا رنگ۔ میں جس شہر سے ہوں وہاں 1.25 لاکھ ظاہری، 1.25 لاکھ باطنی بزرگوں کی درباروں کے اوپر طرح طرح کے شرکیہ کام ہو رہے ہیں، اور میں وہیں رہ کے پڑھا ہوں۔ صحرا کا صحرائی، چولستان کا چولی، 7 کلومیٹر تک قرب و جوار میں کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں، جنگل ہی جنگل۔ چودھری عبد الرحمان بیٹھا ہے، نابینا ہے، ایک مہمان گزرتا ہے، چودراہٹ کی دلیل یہ ہے کہ صبح 60-70 روٹیاں بہوں سے لگوا کے ساز و سامان ساتھ رکھ دیتا ہے کہ کوئی راہی اچانک آئے تو ویٹ نہ کرنا پڑے، اس کو روٹی دی جائے، کھانا کھلایا جائے اور وہ گزر جائے۔ نلکے لگے ہوئے ہیں، پانی پی لے، علاقے کے پانی کڑوے ہیں، قدرتی رب نے اس نلکے کا پانی میٹھا رکھا ہوا ہے، لوگ اس وجہ سے کبھی آتے تو رک کرتے کہ فلاں جگہ سے پانی میٹھا ملے گا۔ ایک آدمی آیا ہے، پانی مانگا ہے، پانی دیا، پیا، اٹھ کے جانے لگا تو بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹھیے، جو طعام ماحضر ہے وہ آپ کو دیا جائے، ہماری خدمت قبول کریں۔ مجھے کہا گیا، گھر گیا، ماں جی نے کھانا دے دیا، ان کو لا کے اچار کے ساتھ روٹی دی، انہوں نے کھانا کھایا، مصلے پہ 2 رکعتیں پڑھی اور ہاتھ اٹھا دیے۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد جاتے ہوئے یوں بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، اللہ اس بچے کو دین کا علم دے دے۔ نہ بچے کو اس وقت اتنا شعور کہ دین اور دین کا علم کیا ہوتا ہے۔ گزرنے والا گزر گیا، والد صاحب آئے، دادا جی نے سارا ماجرا سنایا، سنانے کے بعد ایک ہی لفظ بولا باپ نے، انہوں دا نام کی سی؟ کہندے ہو مینوں نام اپنا عبد الرزاق دس گیا نا، میرا نام اس وقت حیدر تھا، ابو نے نام بدل کر کے عبد الرزاق رکھ دیا۔ وہ ایک عالم کی ایک دفعہ گزر، اس کے بعد ہم نے انہیں نہیں دیکھا، چیچا وطنی کے
रेलवे स्टेशन के ऊपर तबलीगी दौरे के दौरान उनकी वफात हुई। अहमदपुर शर्की हवाले, अल्लाह उनकी कब्र करवट करवट जन्नत नसीब करे। एक आलिम का गुजर, खेती बाड़ी करने वाला, फलों से गंदम की गहाई करने वाला, एक वो शख्स के जिसने दुनिया जहान की खेती बाड़ी की अनवाओ अकसाम को देखा, निकलना मुमकिन ही नहीं था। रब उन जो है 1.25 लाख शहरी और बातनी दरबारों से निकाल करके अपनी दरबार का मुजाविर और गद्दी नशीन बना के, तौहीद का लंबरदार बना के अगर इस जगह पर बिठा देता है तो मेरा कोई कमाल नहीं, ये एक आलम की इज्जत और सिर्फ गुजरने का नतीजा है। अपने इलाके के कारियों की कदर करो, उलमा की कदर करो। मीडिया इस वक्त इनके खिलाफ जा रहा है, जैसे ड्रामों में घर के बाप को गिराया जा रहा है, शौहर को गिराया जा रहा है, मर्द को कमजोर किया जा रहा है, औरत इससे मजबूत नहीं हो जाएगी। ऐसे ही तुम्हारे उलमा की किरदार कुशी करके, मदरसों की किरदार कुशी करके कोई एक वाकया हवाला मिला, पूरे मोहल्ले में बदनामी करके अपना कोई करेगा तो जामे इस्लामिया बहावलपुर की तरह छुपाएंगे, दबाएंगे और रिपोर्टें बाद में कहेंगे बस ऐसे ही थी। तुम्हारा कोई ऐसा मिला, इन लोगों से मिलो, मस्जिदों में आया करो, हर दिन कोई ना कोई मीटिंग रखो, बच्चों को लेकर के आओ, मानूस करो, इनको अपने घरों में बुलाओ, हफ्ते रोजा मीटिंग, और कुछ नहीं, चाय पे बुलाओ। किसी भी मसलक का कारी खतीब आलिम दाई है, तुम्हारे लिए रब की रहमत है, कम अज कम किताब और सुन्नत के साथ तो जोड़ता है। इन लोगों से जब मिलोगे ना तो तुम्हारे बच्चों में आने वाले दिनों में जो मेरा रब बरकत देगा वो आप सोच भी नहीं सकते। मेरे दादाजी को शायद पता नहीं है कि उनका बेटा उनकी तरफ से कितने हज कर चुका, कितने उम्रों पे जा चुका, कहां कहां रब उसको लेकर के गया, लेकिन उस दादाजी की उस एक खिदमत और जो उन्होंने एक आलिम की मोहब्बत दिल में डाली कि आने जाने वाले राही उनसे जो है वो दुआ करवाते हैं, उनके सामने खिदमत पेश करते हैं। अगर लोगों की वजह से आपने इनसे दूरियां इख्तियार कर ली तो फिर आपके बच्चों के मुरब्बी कौन होंगे? मैं जुमा पढ़ाया है गुस्ल पे, दारुस्सलाम मस्जिद है, सवालो जवाब की नशिस्त है, मैंने तरीका बताया सुन्नत के मुताबिक नहाने का। एक नौजवान घूरता रहा, कहता है जी मैंने आखिर में आपसे सवाल करना है और साइड पे होके करना है। मैंने कहा जी पूछा मैंने। कहता आपने जो ये हदीसें सुनाई हैं, कुरान से बताया गुस्ल ऐसे होता है, ऐसे ही होता है। मैंने कहा क्या मतलब? कहता जी आपने बताया है कि इज़्दिवाजी ताल्लुकात के बाद नहाना है। मैंने कहा जी। कहता जी मेरे तो 3 बच्चे हो गए, मैं तो पहले ही नहाता रहा। सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? वो किसी आलिम से नहीं मिला, उसने किसी वीडियो से, किसी मीडिया से, किसी जो है वो गैर से, कहीं मगरब से, दियारे यूरोप से सीखा है। जब तुम्हारे बच्चों के हाथ में मोबाइल और नेट और सिखाने के लिए यही चीजें हैं तो फिर आने वाले दिनों में इंतजार करो। पैसा तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, इज्जत तुम्हारी, गैरत तुम्हारी, औलाद तुम्हारी, घर तुम्हारा, सारे खर्चे तुम्हारे, फीसें तुम्हारी। लेकिन उन्होंने पढ़ा क्या है? पढ़ाया उसे ऑक्सफोर्ड वालों ने अपना तरीका है। मस्जिद से जुड़ के पढ़ो, जाओ स्कूलों में, कॉलेजों में, मैं नहीं रोकता, लो डिग्रियां, लीजिए गोल्ड मेडल, बनिए डॉक्टर, इंजीनियर। लेकिन अफसोस होता है, बेटे के निसाब को देखता हूं, टीचर के पास बैठ के किताब पढ़ा है, उसके ऊपर तस्वीर बनी हुई है, एफ फॉर फिंगर, ए से शुरू है, वाई तक, जी तक जाना है, आगे तस्वीरें बनी हुई हैं जैसे अलफ नार बे बकरी। हैरान हो गया कि एक बड़ी गलत सी तस्वीर बनी हुई है। मैं नीचे बैठ गया, मैंने कहा बेटा ये कौन सी किताब है? कहने लगा बाबा इंग्लिश की। बेटा ये क्या है? बाबा एफ फॉर फिंगर, और तस्वीर बनी हुई है ये। पूरी दुनिया में बदनाम जमाना, लवातत के लिए, गंदगी के लिए, बुराई का इशारा, छोटे से पाकीज़ा नन्हे मुन्ने ज़हन में जब पहली दूसरी क्लास में यह इशारा डाला जा रहा है, बड़ा होकर के क्या अपने बाप को ऐसे नहीं करेगा, मां को नहीं करेगा, मोहल्ले वालों को नहीं करेगा, बच्चियों से नहीं करेगा ऐसे? फिर कहोगे ज़ैनबें मर रही हैं, फिर कहोगे ये हो रहा है, फिर कहोगे कि गिलाजत है, फिर कहोगे कि गंदगी है। मेरे मुस्तफा ने इस उंगली से गाली दी जाती थी जमाना जहालत में, सब बाबा कहते थे। जब मेरे मुर्शद ने पढ़ाया इस मस्जिद और मदरसे से तो कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये सब बाबा नहीं है, गाली देने वाली नहीं है, अब ये रब की तस्बीहात बयान करने वाली है। सुबहान अल्लाह भी यही से, अल्हम्दुलिल्लाह भी यही से, अल्लाहु अकबर भी यही से, दाएं हाथ से। तो ये वाली तरबियत दिलवानी है तो अल्लाह के घरों के साथ जुड़िए, ये सबक यहीं से मिलेगा। मसलकों की जंग लड़ लड़ के मर न जाओ, कुछ सीखो। दुश्मन तुम्हें तुम्हारे अपनों से दूर कर रहा है, बेगानों के करीब कर रहा है, और मोबाइल ने तो करा ही यही है कि अपने बेगाने कर दिए, बेगाने अपने कर दिए।
जुड़ोगे अल्लाह के घर से? जुड़े हुए तो आप पहले भी हैं, लेकिन वही रूटीन के नमाजी, वही रूटीन के तस्बीह फिरी तो दिल ना फिरिया, वही रूटीन के हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, वही रूटीन के मोमिन दिलों के फट तसींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो। एडी उची टोपी आप पहले वेखी सी? वन सवनियां तो महंगियां महंगियां टोपियां, अजीब अजीब डिजाइनिंग। लेकिन क्या मजाल के कोई ये कह दे कि आईना टूट भी जाए तो बड़ी बात नहीं, दिल ना टूटे कि ये बिकता नहीं बाजारों में। दिल चीर के रखते हो और मिंबरों मेहराब से चीरते हो। ओ फर्ज पुलाई बैठे हो तो नफला नीति जानते हो। मां बाप को कोई दवा दारू टीका लेके देने को तैयार नहीं। ओ मर गया फलाने की जिम्मेदारी कल्ले मेरे ते ही बोझ ने, गैरों के ऊपर लुटा रहे हो। फर्ज भुलाई बैठे हो तो नफला नीति जानते हो। खा खा माल यतीमां दा भज भज मसीती जाते हो। नफसां ते छुरी ते फेरी ना दुंबई कीती जाते हो। ये अल्लाह के घर से दूरियों के नतायज हैं, दूरियों के। आइए, जब इस घर से जुड़ोगे तो अगले घर अल्लाह सही कर देगा, सुकून दे देगा। कौन सा सुकून? बीमारी में सुकून। बीमारी का घर है, अल्लाह हमें उससे बचा के रखे। इसमें से सबको गुजरना होता है। दुनिया में सबसे बदबख्त बंदा वो है जो बीमार हो और उसका कोई हाल पूछने वाला ना हो। डराने वाले हो, हाँ है इस बीमारी च तो चाचा फौत हो गया सी, कोई ये कहने वाला ना हो ला बासा तहूर इंशाल्लाह। ले मैं सुनिया सी बीमार है, मैं तो पता करना से, तू तो चंगा भला ठीक ठाक है। अगला बंदा उठ के बह जाता, ला बास कोई हर्ज वाली गल ही नहीं, तहूर तो बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह, रब ने चाहा तो। अगर ये बीमारी कोई देगा दा मसला, तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज। बात तरबियत पे हो रही है। खैर, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। आपकी फिक्र कर रहे हैं कि कहीं आप खाली ना चले जाएं, उससे पहले पहले आपका बंदोबस्त कर दिया जाए। बीमारी के घर में अगर एक अच्छा तीमारदार मिल जाए ना, एक अच्छा तीमारदार, तो अल्लाह बीमारियां दूर कर देते हैं। आया था ना वो बीमार बच्चे के पास एक तीमारदार, मेरा मुर्शिद, मेरा इमाम, मेरा लीडर, और उस बच्चे को क्या कहा था? वो यहूदी का बेटा, उस तीमारदारी ने उसे कलमा नसीब कर दिया था। कभी यूं भी होता है कि डॉक्टर बड़े अच्छे होते हैं, औलादें बड़ी अच्छी होती हैं, मोहब्बतें बड़ी होती हैं, लेकिन बंदा बीमार होके हर तरह की अच्छी दवाई लेके भी उम्मीद च हुंदा कि फलाना एक दफा आण के पुछ लवे ना, जे फोन कर दे, चलो जे आ नहीं सकता तो दो बोल ही बोल दे। वो दो बोल के इंतजार में बैठा है, और ये आपको मस्जिद सिखाएगी कि अल्लाह के लिए कोई नाराजगी है तो माफ कर दे। वो ऊपर ऊपर से सख्त बना हुआ बाप पता नहीं तेरे इंतजार में कितना अंदर से टूट चुका है। चला जा। कोई रिश्तेदार बीमार है, मुमकिन है तेरे दो मीठे बोल सारी दुनिया के दवा और दारू पे भारी हो जाए और वो उठ के बैठ जाए। बीमारी के बाद सकरात का घर। मेरे पैगंबर के घर के अंदर एक घर है और महबूब कह रहे हैं अला लिल मौत लसकरात, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अला। ये वार्निंग के लफ्ज है। अल्लाह अल्लाह। मौत की कितनी सख्त तलखियां हैं। रब्बी इन्नी अला सकरातिल मौत। अल्लाह सकरात के घर को आसान कर दे। उसके बाद मौत का घर है, मौत के लम्हात। कितने लोग मैंने देखे हैं कि जो मरे हुए हैं, उनका होंठ बंद करने वाला कोई नहीं था, आंखें बंद करने वाला कोई नहीं था। वो डावनों के अंदर रगड़ रगड़ के एरियां मर गए, टांगे इकट्ठी हो गई, हाथ पांव जो हैं वो अकड़ गए, कोई सीधा करने वाला नहीं था। इतना अजनबी ना बन कि कल को कोई गर्दन सीधी करने वाला ना हो। फिर मैंने देखा अगला, दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन घर। अकेला आया था, अकेला जाना है, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाना है। अल्लाह का इससे बढ़ के भी कोई अदल और इंसाफ देखेगा कि हर अमीर व गरीब को खाली हाथ भेजा है, खाली हाथ वापस लेके जा रहा है। आखिरी गुस्ल जब तेरे जिस्म से कपड़े उतारेंगे, कोई तेरी पर्दादारी रखने वाला पीछे है? अगर तूने बावफा बन के
जिंदगी में इनसे वफा करी, सिर्फ सूद हराम चोरी डाका नहीं डाला, हलाल का कमा के खिलाया, तरबियत करी, मस्जिद मदरसे से जोड़ा। मैं कसम खा के कहता हूं सारे बच्चे एक दूसरे से आगे बढ़ के कह रहे होंगे मैंने नहलाना है, वो कह रहा होगा मैंने नहलाना है, पीछे भागने वाले नहीं होंगे। एक मैयत के गुस्ल पे गए, 5 बच्चे कह रहे हैं, 5 के 5 ओए सदो तू किसी ਨੂੰ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਨਵਾਵੇ। मैं कह राणा जी गुस्सा ना करे जे प्यो ने सारी जिंदगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ यार ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ है ना बंदे पैसे ही देने। जो मेरे साथ उनमें से एक भाई बैठता था, मैंने उसे आंख का इशारा किया, बताया हुआ था, सिखाया हुआ था, उसने आगे होकर के अपने बाप को आखिरी गुस्ल दिया। हजरात कपड़े काटने कैसे हैं, उतारने कैसे हैं, नहलाना कैसे है, करवटे कैसे हैं, पर्दादारी कैसी है, उसका आखिरी वुजू और तैयारी कैसे है। जिसने सारी जिंदगी तुझे सुरमे पहना है, आज जाते हुए एक चुल्लू पानी भी नहीं डालने की हिम्मत, क्या वफा करी है। अगला जहान है, ओए होए कपड़ों का घर। कितनी दुकानें हैं शहर में, बाप को सुन्नत के मुताबिक कफन दिया कि नहीं दिया। 9 बच्चे हैं एक मां बाप के, 9 के 9 लड़ रहे हैं, कफन मेरे को नहीं दे हुंदा, दूसरा कहता मेरे हालात ठीक नहीं, तीसरा कहता मेरे नहीं, ये सौरियां दा बनदा है, फलाणियां दा बनदा है। यहां भी तेरे रीत और रिवाज हो। काश तू कहता कि अब्बू आखिरी जाते जाते लिबास मेरा ले लो, और वो बच्चे होते जो 9 के 9 मिलके कहते कि यार सारे ही सपाओ असी अपने बाप आप नूं अपने हत्थी भेजना है। 4 पाइयों पे लिटाने उठाने वाले मैंने देखा है, कंधा देने वाले गैर निकले अपने बच्चे ये करते हुए देखे गए। जनाजे का जहान, जा पता कर क्या कमाया है तूने। बाप करोड़ों पति होकर इस दुनिया से गया, मां भी उतनी ही पति थी। एक दिन हुस्न इत्तेफाक से बीमारी से इफाका हुआ, मेरा प्रोग्राम नहीं था, मैं घर बैठ गया, मैंने लिस्ट पकड़ी, मां जी को कहा मां जी टुर ते सारियां ने भी जाना है। कहते नहीं पुत तू किते सड़कों ते फिरदा होना, तेरी मां दा साह निकल जाना। मैंने कहा अच्छा पता नहीं मेरी पहले लिखी है कि आपकी, मेरी जमात के ये 11 वली हैं, मैंने नाम लिखे हुए। मां जी लोग शरफ समझते हैं, उलमा शरफ समझते हैं कि यह जनाजा पढ़ाएं। नाम लेने शुरू किए, तारुफ करवाया, अच्छा अच्छा करती गई और एंड ते कहंदी फिर मैं क्या मी दसो कि कहते पुत जी मैं इन्हां कोलों ही जनाजे पढ़ाने से, मैं तेरी 30 साल जुदाई क्यों कटी है। मां जी क्या चाहते हो पुत, उस जिस जामिया च तेनों भेज के मैं जुदाइयां कटियां ने ना, मेरी एंड ते मंजी उथों चुक दे। ये मेरी मां की टोटल जमा पूंजी है, जमा कमाई है, सारी औलाद जिसकी जुदाई बर्दाश्त कर करके आखिरी जनाजा। बेटा जी आपने अपने बाप के लिए कुछ किया, ये जनाजे का घर वफा का घर, आखिरी तोहफे और गिफ्ट भी गैर से दिलवाए। जितना दिल औलाद का टूटा होता है किसी का नहीं, जितनी दर्द अपना जिस्म महसूस करता है कोई और नहीं, जैसी अच्छी खारिश अपना नाखून करता है कोई और नहीं। बाबा जी अगर आपने अपनी औलाद को यह वफा सिखा दी है, मुबारक हो, आपके जनाजे का घर मुबारक हो, वो चारपाई मुबारक हो, वो जुमले मुबारक हो। लेकिन अगर वहां भी बेटे के मोबाइल में टूने चल रही हैं, गाने चल रहे हैं, और वो समझ रहा है कि बाप उठा जान छूटी, घर मिलेगा, ये वो लड़ाइयां, ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, दूंगा नहीं दूंगा, तो याद रखिए ये मस्जिद सिखाएगी कि किसको किसका हक देना है, वगरना तेरे मरने के बाद तेरी कब्र जहन्नम के अंगारे बना देगी औलाद। कभी बहन का हक मार के, कभी बेटी का हक मार के, कभी बाप के नाम पे झूठी जो है वो वसीयतें दिखा के, कभी ये करके कभी वो करके, और यही हो रहा है। उधार देने का ऐलान कर देते हैं, अब्बा जी दी मंजी पाक जिन्हें उधार लैन देना वे मेरे ना करे, बाद च कहंदे मर गया लै लै के गालां कढ़ के प्यो नूं असीं कित्थों दईए। नहीं, तेरा कफन, तेरी वसीयतें, मां बाप की छोड़ी हुई जमीन मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए औलाद ने लड़ लड़ के पलाट कटवाए हैं आज वहां पे।
ایک بزرگ میری جماعت کے گزرے ہیں، ان کی چھوڑی ہوئی وقف شدہ جگہ کے اوپر میں 20 سالوں سے مقدمے دیکھ رہا ہوں، نامی گرامی علماء ہیں۔ کیا سیکھا، کیا سکھایا، کیا پڑھا، کیا پڑھایا، کہاں گیا علم؟ اس مسجد سے دوری کے نتیجے ہیں، وگرنہ بہن کا حق نہیں۔ ابو جی نے ایک دن بٹھایا، کہنے لگے پتر کی کرنا جے پہلیاں دا؟ میں کہ ابا جی تھوڑیاں دعاواں چاہیے نے، لوڑ نہیں، تسی سانو جڑا دین دا علم دے چھڈیا نا، اسی تواڈے پیر دھو کے بھی پیے تے اسی تواڈا احسان نہیں چکا سکتے۔ کہندے پھر بھی؟ میں نے کہا ابا جی جہاں آپ نے بھیجا تھا نا، انہوں نے سکھایا ہے کہ زندگی میں ماں باپ کچھ دیں تو گفٹ ہوتا ہے، جنہ دینا جے دے دو اُنہ ہی ساڈا اُنہ ہی بھੈਣਾਂ دا برابر برابر ہے۔ کہندے پت یہ گلاں تانوں سمجھنا ہے کہ جی جتے بھیجا جی انہوں نے بہت اچھے طریقے نال سمجھایا ہے، حق ادا کیتا ہے، سانو لالچ نہیں۔ جے زندگی چ دینا چاہتے ہو تہاڈی محبت مہربانی پیار، لیکن اسی یہی کہاں گے کہ نہیں، اس زمیناں دی بھوک پچھلیاں دی بھی نہیں مٹی، وہ بھی اج نہیں ہے گئے، چلے گئے تو۔ ابا جی نے اٹھ کے گلے لگایا، چوڑے ہوئے بھائیوں کو بلاؤ یار میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کہا۔ انہوں نے بھی سیم جواب دیا، ابو جی کوئی نہیں۔ لوگوں نے کہا انہاں دا پیو مرن دو تو پھر ویکھاں گے۔ 2 فروری کو اس سال اللہ کو پیارے ہوئے، ابھی تک ہماری ایک بھی میٹنگ زمین کے حوالے سے کوئی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ یہ وہ تربیتیں ہیں، ان کے گھر اللہ سے دعا کرنے والے پیچھے ایک ایک فرد، اور اللہ کی قسم یہ شرف حاصل ہے، گھر سے کسی بھی ٹائم باہر نکلوں تو بھی ماں باپ سے ملاقات کر کے دونوں کی قبریں ایک ساتھ مین کے اوپر، کسی بھی ملک کے حصے سے انٹری لوں تو پہلے ان کے ساتھ دعاؤں کا سلسلہ جوڑ کے پھر اپنے گھر جاتے ہیں۔ یہ محبتیں انہوں نے ہمیں دی تو بدلے میں آج ان کو مل رہی ہیں۔ صدقہ جاریہ بنے اور بنائیں۔ پھر قبر کا گھر، کتنا خوفناک گھر ہے۔ میں اس باپ پہ جو کہا کرتا تھا پوت ہاں تیرا مکان باندھے تھے مینوں سا نہیں آؤں، بد کوٹڑی میں ہے، میں کوئی وہاں پہ روشن دان نہیں دے سکتا۔ پھر نشر کا گھر، حشر کا گھر، وہ برزخ کا گھر، وہ آراف کا گھر، وہ جہنم کا گھر، وہ جنت کا گھر۔ اگر اس گھر پہ اعتبار کیا تو اگلا جہنم سے بچ کے اللہ جنت کا گھر عطا کریں گے، جہنم سے بچا لیں۔ اگر اس گھر پہ اعتبار کیا، اگر آپ اس گھر سے نہیں جڑے تو یاد رکھیے پھر دنیا بھی جہنم کا دا اور آخرت بھی اللہ نہ کرے پھر وہی جلنے جلانے والی چیز ہے۔ تو فرما بردار بنیے، فرما بردار بننا ہے تو اللہ کے اس گھر سے جڑیے، ایک دوسرے کے حق حقوق کا خیال رکھیے، عزت دیجیے، عزت لیجیے، احترام کیجیے دیجیے، حقوق نہ ماریے۔ اگر آپ نے ایک حق ایک بالشت جتنا بھی کسی کا مارا، یہ پیچھے رہ جانا ہے، ساتھ نہیں جانا۔ لیکن کل قیامت کے دن حلال کھایا حساب دینا پڑے گا، حرام کھایا سزا اٹھانی پڑے گی۔ جو اپنی گردن میں 5 کلو کا وٹا ڈال کے نہیں چل سکتا، پوری 7 زمینیں کاٹ کے ایک بالشت کا توق گلے میں ڈال کے جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو کیا کرے گا؟ وہ تو پیچھے رہ گئی۔ تو اس لیے سمجھیے، سمجھائیے، پرکھیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے گھر بہترین ہو جائیں گے، اولادیں وفادار، سمجھدار، حیادار، باوقار ہو جائیں گی، اور اللہ اور اس کے رسول کی مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گی۔ اپنی اپنی کوشش اور اپنا اپنا رول پلے کیجئے، اور جہاں آپ کا کردار بنتا ہے، جوانوں اپنے بزرگوں کا ساتھ دو، بزرگوں اپنے جوانوں پہ نظر رکھو اور سر پہ دست شفقت رکھو، اپنے بچوں کو پیار دو، گھر والے ایک دوسرے کو اعتبار دیں، بڑوں کو وقار دو، انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جائے قرار دے گا، اور جائے قرار جنت ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہ تیرے بندے زمین و آسمانوں کے تھال تیری تعریفوں سے بھر کے تیرے حوالے کرتے ہیں، اللہ یہ سب قبول فرما۔
اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری تسبیحات تقدیسات کو بیان کرتے ہیں، تیری عزت تیری آبرو اللہ اس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، زندگی کا اسی کو معیار اور ہار سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ان کی اصلاح فرما دے۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ اللہ تو رحیم ہے، غفور ہے، تجھے تیری عزت اور کبریائی کا واسطہ اللہ ہمارے ملک کے اندر مہنگائی اور غربت کے جو طوفان کھڑے ہیں اللہ ہمیں ان سے نجات دے۔ اللہ جتنے بھی بے روزگار لوگ ہیں اللہ ان کو جائز اور حلال روزگار عطا فرما۔ اللہ ہمارے ہی ہاتھوں کی کمائی اور ہمارے ہی ووٹوں کی کمائی، اللہ ہمارے ہی الیکشن اور سلیکشن، اللہ ہمارے اور ہمارے حکمرانوں کے درمیان جو دوریاں نفرتیں بغض پیدا ہو چکے ہیں، اللہ جو بے رحمی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، اللہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار اور اعتبار عطا فرما۔ الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد کا میوہ دے دے، اللہ جن کے پاس بیٹی یعنی ان کو بیٹیوں کی نعمت دے دے، اللہ جو بیٹوں سے محروم ہیں اللہ ان کی جھولیاں اس میٹھے میوے سے بھر دے۔ الہ العالمین جتنے لوگ زندہ ہیں ہمارے عزیز و اقارب ان کو صحت اور ایمان والی زندگی دے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تیرے توحید کے دائی اور علم بردار، تیرے محبوب کی سنتوں کے دیوانے، اللہ ان کی قبروں کو منور کر دے، اللہ تا حد نظر وسیع فرما دے۔ اللہ میرے مائی باپ سمیت جتنے بھی لوگوں کا کوئی ایک یا دونوں اس دنیا سے گئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہیں عطا فرما دے۔ الہ العالمین ان کی اچھی مہمان نوازی فرما، میرے مالک ان کی اولادوں کے اندر خیر اور برکتوں کا جو پہلو ہے وہ چلائے رکھ، اللہ ان کو صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور خیر کا پہلو بنا دے۔ اللہ اس مرکز کو آباد کرنے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے، اللہ جتنے بھی دوست احباب ان کے ساتھ شریک تھے اللہ رحمانی صاحب کو ان کی جو ہے عظمتوں سے نواز، اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان فرما، اللہ ان کے اس لگائے ہوئے پودے کو تا قیامت سلامت رکھ۔ الہ العالمین اپنے وطن کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما، اللہ زمینی اور دینی سرحدوں کے نگرانوں کی نگرانیاں فرما، اللہ بے اولادوں کو اولاد کا میوہ دے دے، الہ العالمین بیماروں کو شفا دے دے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ جتنی نفرتیں ہیں محبتوں میں بدل دے، جہاں دوریاں ہیں قربتیں عطا فرما دے، اللہ جہاں جہاں بھی خاندان میں میاں بیویوں میں کسی میں بھی لڑائی ہے اللہ ان کے اندر صلح کا رجحان پیدا فرما دے۔ میرے مالک جو ایک دوسرے کے حقوق غصب کر کے بیٹھے ہیں اللہ ان کے دل میں ڈر پیدا کر دے اور انہیں آخرت کی اور قبر کی فکر لگا دے کہ یہ سب یہاں رہ جانا ہے، سب مایا ہے، سب دھوکہ ہے، سب سراب ہے، اصل اعمال ہیں، اللہ نیک اعمال دے اور پھر ان کو قبولیت کا جو ہے وہ صحرا دے۔ الہ العالمین تیرے بندے تجھ سے اپنے ہاتھوں کا کشکول بنا کے سائل اور مانگت بن کے مانگ رہے ہیں، اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، نصیبے اچھے کر دے، اللہ جن کی اولادیں نہیں اولاد دے، جن کی اولادیں جوان ہیں رشتوں کی پریشانی ہیں اللہ ان کو اچھے جوڑ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔